یہ کہانی شروع ہوتی ہے محمود آباد سے، کراچی والے نہیں، ہندوستان والے۔ ارے نہیں، یہ کہانی نصیب بریانی کی نہیں، بلکہ یہ داستان ہے ایسے بزنس کی جس نے لاکھوں لوگوں کے نصیب بدل دیے اور پھر انہیں برباد بھی کر دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بینک کی جو اپنے عروج پر دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ بینک تھا۔ یہ بینک ملکیت تھا اربوں کی، رجسٹرڈ تھا لکسمبرگ میں اور اس کا ہیڈ کوارٹرز تھا برطانیہ میں، لیکن اس بینک کو بنایا تھا پاکستانیوں نے۔ 1972 میں بننے والا یہ بینک 80s میں اپنے عروج کو پہنچا۔ اس کے 14,000 ملازمین تھے، 72 ملکوں میں 400 شاخیں تھیں، 13 لاکھ ڈپازٹرز اور 20 ارب ڈالر سے زیادہ کے ایسٹس۔ کم از کم آن پیپر تو ایسا ہی تھا، لیکن پھر آیا 1991، بینکنگ فراڈ کا الزام لگا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسے دنیا کا موسٹ کرپٹ بینک قرار دیا گیا۔ منشیات، منی لانڈرنگ، خفیہ ہتھیاروں کی ڈیلز اور دہشت گردوں کی مالی مدد سے بھی جوڑا گیا۔ ایٹ لیسٹ بتایا یہی گیا، لیکن بینک کے حامی آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں مغرب کی فائنینشل سسٹم کی سازش تھی، جو نہیں چاہتے تھے کہ تھرڈ ورلڈ کا کوئی ادارہ عالمی سطح کا بینک بنے۔ یہ بینک تھا BCCI، یعنی بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل، مگر مخالفین کہتے ہیں بینک آف کروکس اینڈ کرمنلز انٹرنیشنل۔ آئیے آج جانتے ہیں BCCI کی کہانی رفتار کی زبانی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ شاعروں کا حال تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اپنی خودی میں مست بلکہ فقیر حال مست ہوتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک شاعر کی ہے، بس یہ شاعر ایسا ہے کہ جس کے ایک اشارے پر اربوں ڈالر ادھر سے ادھر ہوتے تھے۔ یہ ہیں BCCI کے بانی آغا حسن عابدی، جو دنیا کا سب سے بڑا بینک بنانا چاہتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ خود کو بینک کی نوکری کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ حسن عابدی کے قریبی دوست تھے عبادت یار خان، وہ بھی شاعر تھے اور ادبی دنیا میں عبادت بریلوی کے نام سے مشہور تھے۔ وہ اپنی کتاب غزلان رانا میں لکھتے ہیں، ایک دن انہوں نے آغا حسن عابدی کو بینک میں ملازمت کا مشورہ دیا، جس پر جواب ملا، یارا کیسی باتیں کرتے ہو، میں اور بینک میں ملازمت، تم تو مجھے جانتے ہو یہ میرے مزاج کا کام نہیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، حسن عابدی کو نہ چاہتے ہوئے بھی بینک جوائن کرنا پڑا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حسن عابدی اصل میں انگلش لٹریچر اور قانون کے طالب علم تھے، لیکن 1946 میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بینکر بن گئے۔ ان کی عمر 24 سال تھی جب انہوں نے سٹارٹ لیا۔ حبیب بینک سے زیادہ دن نہیں گزرے، پاکستان آزاد ہو گیا۔ حبیب بینک کا ہیڈ کوارٹر بھی دارالحکومت کراچی شفٹ ہو گیا، یوں حسن عابدی بھی یہیں آ گئے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ بینک کے ڈیسیشن میکرز میں سے ایک بن گئے، لیکن پھر حبیب فیملی کے ساتھ اختلافات ہو گئے، یوں حسن عابدی نے حبیب بینک چھوڑ دیا اور 1959 میں سیکل گروپ کی انویسٹمنٹ سے کھڑا کیا یونائٹڈ بینک۔ 11 سال میں، صرف 11 سال میں ملک میں یونائٹڈ بینک کی 912 شاخیں ہو گئیں اور یہ حبیب بینک کے بعد ملک کا دوسرا بڑا بینک بن گیا۔ یہی پہلا نان عرب مسلم بینک تھا جس نے متحدہ عرب امارات میں بھی برانچ کھولی۔ اسے ایک فیصلے سے حسن عابدی کی قسمت نے ایک نیا ٹرن لیا۔ عابدی صاحب شاید ویسے ہی ایک عالمی بینک بنانا چاہتے تھے، لیکن دو واقعات ایسے پیش آئے جو فوری محرک بن گئے۔ پہلا سقوط ڈھاکہ اور دوسرا بھٹو حکومت کا پرائیویٹ اداروں کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ۔ یونائٹڈ بینک بھی بھٹو کے اس ایڈونچر کی زد میں آ گیا۔ پاکستان سے دل برداشتہ ہو کر عابدی نے اپنا رخ عرب دنیا کی طرف کر لیا، لیکن انٹرنیشنل لیول پر بینک بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری تھیں، ایک غیر معمولی اعتماد، دوسرا تعلقات کا بڑا نیٹ ورک اور تیسرا بہت سارا پیسہ۔ پہلی 2 چیزیں تو حسن عابدی میں خوب موجود تھیں اور تیسری چیز کی تلاش میں وہ ایک بار پھر پہنچے متحدہ عرب امارات۔ جب 60s میں یونائٹڈ بینک کی برانچ کھولنے وہ پہلی بار عرب امارات گئے، تب انہوں نے ابو ظبی کے حکمران شیخ زاید بن سلطان النہیان کو ایک نایاب قالین پیش کیا تھا۔ اس تحفے کا نتیجہ نکلا دوستی کی صورت میں۔ اس کے بعد جب بھی شیخ زاید پاکستان آتے، ان کے رہنے، کھانے پینے، ہر چیز کے انتظامات آغا صاحب کے ذمے ہوتے۔ لیکن اب یہ دوستی بزنس پارٹنرشپ میں بدلنے والی تھی۔ 1972 میں شیخ زاید کی 75% اور بینک آف امریکہ کی 25% سرمایہ کاری سے ایک بینک کی بنیاد رکھی گئی۔ نام رکھا گیا بینک آف کامرس اینڈ کریڈٹس انٹرنیشنل۔ رجسٹر کروایا گیا یورپ کے ملک لکسمبرگ۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں رجسٹر کروانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ ملک کے نرم قوانین کا فائدہ اٹھانا۔ BCCI کا آغاز طوفانی تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تیل کی دریافت اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتیں عرب ملکوں پر دولت کی بارش برسا رہی تھی۔ 1970 میں ابو ظبی کی آمدنی 80 کروڑ ڈالر تھی، جو 5 سالوں میں 10 گنا بڑھ کر 8 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ یہ پیسہ کہاں رکھا جاتا؟ ظاہر ہے کسی بینک میں، اور اس کے لیے فرسٹ چوائس بنا BCCI۔ مغربی بینکوں کے مقابلے میں BCCI کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ یہ عربوں کا اپنا بینک تھا، اس لیے وہ خود کو BCCI کے قریب محسوس کرتے تھے اور اس کے کسٹمرز بنتے چلے گئے۔ خیر 1977 میں، یعنی صرف 5 سالوں میں برطانیہ میں BCCI کی
45 शाखें थी। थर्ड वर्ल्ड का एक बैंक मगरब के बनाए गए आलमी फाइनेंशियल सिस्टम की टेबल पर अपनी कुर्सी मांग रहा था, लेकिन इस कुर्सी के हुसूल के लिए जरूरी था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में अपने कदम जमाए, यानी अमेरिका में। लेकिन ये आसान नहीं था। अमेरिका में कानून था मैकफिडन एक्ट, जिसके होते हुए किसी भी नेशनल बैंक के लिए मुख्तलिफ रियासतों में बैंकिंग तकरीबन नामुमकिन थी। अब क्योंकि बीसीसीआई में बैंक ऑफ अमेरिका का भी हिस्सा था, इसलिए वो जहां भी बैंक खरीदने की कोशिश करता, अमेरिकी रेगुलेटर उसे बैंक ऑफ अमेरिका का हिस्सा समझकर कोशिश नाकाम बना दी। मगर आब्दी साहब कहां इतनी आसानी से रोकने वाले थे। जब दरवाजा बंद मिला तो उन्होंने खिड़की तलाश कर ली, बल्कि खिड़की भी नहीं, रोशनदान तलाश कर ली। एक सऊदी इन्वेस्टर को फ्रंटमैन बनाकर पहले एक छोटा रियासती बैंक खरीदा, फिर इस बैंक के जरिए वॉशिंगटन के मशहूर फर्स्ट अमेरिकन बैंक को खरीद लिया। यूं बीसीसीआई अमेरिका में दाखिल हो गया। यह बज़ाहिर एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असल में यह खात्मे का आगाज था। मुखालिफिन कहते हैं कि बीसीसीआई की कामयाबियों के पीछे ज्यादातर ऐसी ही जुगाड़बाजियां थी, और यही सब कुछ बाद में बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कहलाया। कैसे, ये बताएंगे, लेकिन आप यकीनन सोच रहे होंगे कि वो तो सब ठीक है भाई, लेकिन इसमें महमूदाबाद का क्या कसूर है, और ये कहानी आखिर महमूदाबाद से क्यों शुरू हुई। असल में महमूदाबाद आगा हसन आब्दी का आबाई इलाका था। वो यहीं पैदा हुए और पले बढ़े। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, इस इलाके के जागीरदाराना और शाहाना मिजाज की तारीख का भी आब्दी साहब पर बहुत असर था। कहा जाता है कि इसी बैकग्राउंड ने उनकी बैंकिंग अप्रोच बनाने में अहम किरदार अदा किया। आब्दी साहब के बैंकिंग के तरीके भी जागीरदाराना रिवायात से मिलते जुलते थे, जैसे सखावत, वफादारी और लोगों के सर पर हाथ रखना। आगा हसन आब्दी का इदारा तो बैंक से ज्यादा बादशाहत नजर आने लगा था। अपने इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के लिए ऐसी ऐसी पार्टीज अरेंज करवाते कि मलका बरतानिया भी शर्माने लगे। आगा साहब का सारा मिजाज इस एक वाकये में समझा जा सकता है। उर्दू के एक नामवर शायर थे उबैदुल्ला अली, आगा हसन आब्दी के बड़े करीबी दोस्तों में से एक थे। एक दिन आगा साहब ने उन्हें कहा कि आप मेरा बैंक ज्वाइन कर लें। उबैदुल्ला अलीम ने जवाब दिया, भाई मैं शायर आदमी हूं, मुझे तो बैंकिंग की अलिफ बे भी नहीं आती। आगा साहब ने फिर भी अपनी ऑफर वापस नहीं ली। जब उबैदुल्ला अलीम ने तनख्वाह पूछी तो आगा साहब का जवाब सुनकर होश उड़ गए। वो अगले 500 साल तक भी मुशायरा करते रहते, तब भी कभी इतना नहीं कमा सकते थे। लेकिन उबैदुल्ला अलीम ने कहा कि तनख्वाह तो बहुत अच्छी है, मगर आप इस तनख्वाह को खर्च करने का वक्त नहीं दे रहे। हसन आब्दी ने लंदन में उर्दू मरकज बोर्ड बनाया और इफ्तिखार आरिफ को इसका सरबराह बनाया। ये तो वतन से दूर उर्दू अदीबों का अड्डा बन गया। खैर, आब्दी साहब सिर्फ अपने करीबी दोस्तों ही को नहीं नवाजते थे, बल्कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पेरोल पर बहुत बड़े बड़े नाम थे। प्रेसिडेंट गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान राशिद अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक नजीरुद्दीन अहमद, पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के साबिक चेयरमैन अली पीर भाई और मुश्ताक अहमद यूसुफी। जी हाँ, ये वही मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हम उर्दू मिजाह के अहदे यूसुफी में जी रहे हैं। फिर मशहूर ज़माना वजीर खजाना डॉक्टर महबूबुल हक, ज़ियाउल हक के चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ जनरल रहीमुद्दीन खान, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अकरम शेख और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ IH उस्मानी भी। यानी कहानी तो शायरों से कहीं आगे निकल गई थी। लेकिन भांत भांत के लोगों को अपने गिर्द जमा करने से बैंक का कल्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिसकी एक मिसाल हमें एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन से मिलती है जिन्होंने एक बार आब्दी साहब से यूरोप में मुलाकात की। इस मुलाकात में BCCI के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान बिजनेसमैन आब्दी साहब के साथ बैठे थे, बाकी लोग कुछ फासले पर मौजूद थे। जब कॉफी पेश की गई तो हसन आब्दी ने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से कहा, कप रखने के लिए एक छोटी सी मेज ला दे। ये सुनते ही चारों सीनियर एग्जीक्यूटिव्स खड़े हो गए। एक छोटी सी मेज सबने मिलकर उठाई, सबने एक एक कोना पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता इसे आब्दी साहब के पास लाया। इस तरह की हरकतों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन आब्दी साहब को क्या परवाह, वो तो महमूदाबाद से थे और वहां ऐसा ही होता था। आखिरकार मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। जैसे जैसे इसका फैलाव बढ़ता गया, बैंक के ऑपरेशंस में इबाहम और शकूक बढ़ते चले गए। 70 की दिहाई के आखिर तक BCCI फ्रॉड की कई एक्टिविटीज में मुलविस हो चुका था। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक जब ये धोखाधड़ी शुरू हुई तो BCCI की एडमिनिस्ट्रेशन 2 मसाइल से निपटने की कोशिश कर रही थी। ऐसे मसाइल जो बैंक के वजूद को खतरे में डाल सकते थे। पहला मसला था करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग पर होने वाले शदीद लॉसेस। बंद होने से सिर्फ 1 साल पहले 1990 में बैंक ने $50 करोड़ कमा दिए। मजमूई तौर पर तो ये नुकसान $1 बिलियन से भी ऊपर जा चुका था। दूसरा मसला था मिडिल ईस्ट के नामी ग्रामी कारोबारियों को बड़े बड़े कर्जे देना, वो भी बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए।
यही वजह थी कि 1991 में जब बैंक बंद हुआ तो इसका कर्ज का पोर्टफोलियो 3.1 अरब डॉलर तक था। इनमें से ज्यादातर बड़े कर्जे बीसीसीआई या इसके एग्जीक्यूटिव से करीबी ताल्लुकात रखने वाले लोगों को दिए गए थे। एक अंदाजे के मुताबिक $1 बिलियन की भारी रकम तो सिर्फ 3 लोगों को दी गई, एक सऊदी फाइनेंसर, एक साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ और एक गल्फ प्रो। यूं वो बैंक जो बना था तीसरी दुनिया को सहारा देने के लिए, गरीबों का इस्तेसाल खत्म करने के लिए, अमीरों को कर्जे देता रहा, वो भी ऐसे कर्जे जिन्हें सालों तक अदा नहीं किया गया। यहां बीसीसीआई ने नुकसान से बचने का एक तरीका निकाला। इसने छुपाना शुरू कर दिया और एक स्कीम बनाई जिसे ऑडिटर आज बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे पेचीदा फ्रॉड कहते हैं। इस स्कीम में अकाउंट टर्नओवर में इजाफा और फंड्स की रवानी को छुपाया गया। अकाउंट बैलेंस करने के लिए डिपॉजिट्स तक छुपाए गए। एक अंदाजे के मुताबिक ये डिपॉजिट $60 करोड़ से ज्यादा के थे। इस पेचीदा स्कीम को देखकर जहां ऑडिटर्स का सर चकरा रहा था, वहीं ये काम बैंक के काबू से बाहर भी होता जा रहा था। आखिर ऐसा कब तक हो सकता था? एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने थे और फिर 100 के लिए 10,000 बोलने पड़े। बीसीसीआई पर और भी कई इल्जामात लगे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, टेरर फाइनेंसिंग और असलहे के गैर कानूनी लेन देन में मदद वगैरह। इस मौजू पर एक बहुत अच्छी किताब है, फॉल्स प्रॉफिट्स, द इनसाइड स्टोरी ऑफ बीसीसीआई, लिखा है पीटर ट्रिल और लैरी गुरविन ने। इस किताब के मुताबिक बीसीसीआई दुनिया भर के डिक्टेटर्स, ड्रग कार्टेल्स और दहशतगर्दों का काला धन सफेद करने का गढ़ बन चुका था। इस बैंक के अकाउंट होल्डर्स में इराक के सदर सद्दाम हुसैन भी थे, तो फिलिपाइन के डिक्टेटर फर्डिनेंड मार्कोस भी, पनामा के मैनुएल नोरिएगा भी, तो फलस्तीन की तंजीम अबू निदाल भी, और तो और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तक बीसीसीआई के साथ थी। इसने अफगान जिहाद में रकूम के लिए बीसीसीआई को ही इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि बीसीसीआई इतने अरसे से धड़ल्ले से काम इसलिए करता रहा क्योंकि CIA इसके साथ था। इस किताब में यह दावा भी किया गया कि हसन आब्दी के उस वक्त के डायरेक्टर CIA विलियम्स केसी के साथ करीबी ताल्लुकात थे और दोनों खुफिया मुलाकातें भी किया करते थे, लेकिन फिर हालात बदलने लगे। ये 1987 के इब्तदाई दिन थे। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर टेम्पा में एक मालदार बिजनेसमैन बीसीसीआई के ब्रांच पहुंचा और अकाउंट खोलने की दरखास्त जमा कराई। इस बिजनेसमैन का नाम था बॉब मुसेला। 4 महीने लगे और इनका अकाउंट बीसीसीआई की पनामा ब्रांच में खुल गया और फिर चेक जमा होने लगे। एक दिन किसी चेक पर लिखी रकम के नंबर्स और वर्ड्स कुछ मुख्तलिफ थे। वजाहत के लिए पनामा ब्रांच के अफसर आफ्ताब हुसैन ने उन्हें फोन किया। गुफ्तगू हुई। आफ्ताब ने मुलाकात करनी चाहिए। वो बॉब के बिजनेस के बारे में जानना और उन्हें बीसीसीआई की मुख्तलिफ सर्विसेज के बारे में बताना चाहते थे। मुलाकात हुई जिसमें आफ्ताब ने बॉब को बताया कि कोई रकम खुफिया तरीके से कैसे एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है। फिर तो मुलाकातों का सिलसिला ही शुरू हो गया, जिसमें बॉब ने बताया कि उसका असल काम ड्रग्स का है और ये सारा पैसा भी इसी का है। तब आफ्ताब ने बॉब की मुलाकात अपने कुछ कोलीग से करवाई, जिनमें एक थे अमजद आवान। अगले कुछ महीनों में आफ्ताब, अमजद और दूसरे अफसरों ने बॉब के $1.4 करोड़ लॉन्डर किए। ये 26 जून 1988 था जब न्यूयॉर्क के फर्स्ट अमेरिकन बैंक से ट्रांजैक्शंस का आगाज हुआ। कुल 7 ट्रांजैक्शन हुई जिनमें टोटल $68 लाख मुंतकिल हुए। ये बॉब के लिए तो बड़ी खुशी की बात थी। आफ्ताब और अमजद भी खुश हुए होंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि बीसीसीआई के लिए अच्छी खबर साबित नहीं हुई, क्योंकि बॉब का असल नाम था रॉबर्ट मैजूर और वो ड्रग्स का काम नहीं करते थे बल्कि यूएस कस्टम्स के खुफिया एजेंट थे। उनका काम था ड्रग्स के नेटवर्क्स और खुफिया अकाउंट्स का पता चलाना और इसके लिए उनका इदारा एक खुफिया ऑपरेशन कर रहा था जिसका नाम था ऑपरेशन सी चेज। रॉबर्ट के पास हर वक्त एक खुफिया टेप रिकॉर्ड होता था जिसकी एक रिकॉर्डिंग होती है जून 1988 में, जिसमें अमजद ऐवान रॉबर्ट को कहते हैं कि मैं हर महीने $1 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग आसानी से कर सकता हूं। सबूत पक्के थे और फिर अक्टूबर में डिपार्टमेंट ने इन बैंकर्स पर हाथ डालने का फैसला कर लिया। लेकिन एक मसला था, मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद 10 लोगों को एक साथ कैसे गिरफ्तार किया जाए। आफ्ताब हुसैन के अलावा ये थे जियाउद्दीन अली अकबर जो बीसीसीआई के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हेड थे, इकबाल अशरफ मैनेजर लॉस एंजलिस ब्रांच, अमजद ऐवान लैटिन अमेरिका रीजन के लिए मार्केटिंग ऑफिसर, आसिफ बागसा डायरेक्टर कॉर्पोरेट यूनिट लंदन, अकबर बिलग्रामी लैटिन अमेरिका के लिए मार्केटिंग हेड, नजीर चनाय रीजनल जनरल मैनेजर बराए यूरोप, सिप्ते हसन चनाय के असिस्टेंट, इयन हॉवर्ड कंट्री मैनेजर फ्रांस और साद शफी कंट्री मैनेजर बहामास। रॉबर्ट ने जो प्लान बनाया वो कमाल था। उन्होंने अपनी शादी का ऐलान कर दिया और बीसीसीआई के उन तमाम दोस्तों को फ्लोरिडा आने की दावत दी। 9 अक्टूबर की शाम आई। अमजद ऐवान, आफ्ताब हुसैन, अकबर बिलग्रामी, सिप्ते हसन और इयन हॉवर्ड ये सब शादी की दावत से गिरफ्तार हो। आसिफ बागसा और नजीर चनाई की गिरफ्तारी लंदन से अमल में आई और बाकी लोग मुख्तलिफ मकामात पर गिरफ्तार हुए। अब इन्हें केस का सामना था जो चला जनवरी 1990 में। रॉबर्ट के पास टेप रिकॉर्डिंग्स भी थी, यानी पक्के सबूत थे, लेकिन ये मामला बड़ी खुशअस्लूबी से तय पा गया। बीसीसीआई ने वादा किया कि वो 5 साल के अंदर अंदर फेडरल रिजर्व सिस्टम के हर कानून की पैरवी करेगा और $1.5 करोड़ जुर्माना भी अदा करेगा।
जस्टिस डिपार्टमेंट ने मान भी लिया। इन लोगों को इंडिविजुअली सजाएं तो हुई, लेकिन बतौर इदारा बीसीसीआई को कुछ नहीं कहा गया। बैंक बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। बीसीसीआई ने जो इमारत तामीर की थी वो हाउस ऑफ कार्ड्स थी, जो 1991 में बिल आखिर ये इमारत गिरना शुरू हो गई। अमेरिका में गिरफ्तारियों और केस के बाद जो शोर उठ रहा था उसे रोकने वाला अब कोई नहीं था। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने प्राइस वाटर हाउस कूपर से कहा कि वो इस मामले की इंक्वायरी करे। फिर आई 45 सफ़ात की रिपोर्ट, जिसमें तूफान मचाने वाले इस बैंक के लिए सैंडस्टॉर्म का कोड नेम इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में मुलविस है, बल्कि इसे बैंकिंग हिस्ट्री के पेचीदा तरीन फ्रॉड्स में से एक कहा गया। 5 जुलाई 1991 को लंदन में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स को घेर लिया गया। कुछ ही देर बाद बैंक के दरवाजों पर पोस्टर्स लगे हुए थे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के हुक्म के मुताबिक बीसीसीआई के ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। फिर अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यहां तक कि लुक्समबर्ग ने भी ऐसा ही किया। बीसीसीआई बंद हो गया। आगा हसन आबदी और सीईओ सोहेल नकवी के अलावा कई लोगों पर मुकदमे कायम हुए। हसन आबदी तब पाकिस्तान में थे। वो बीमारी की वजह से 1988 में बीसीसीआई से रिटायरमेंट ले चुके थे। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि हसन आबदी को तफ्तीश के लिए उनके हवाले किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। आबदी साहब ने अपने आखिरी अय्याम कराची में गुजारे, जहां 5 अगस्त 1995 को उनका इंतकाल हुआ। पाकिस्तान में बीसीसीआई बंद करने को आज तक एक बड़ी साजिश समझा जाता है। लोग तो जो कह रहे थे सो कह रहे थे, यहां तो मीडिया तक ने यही कहा। एक पाकिस्तानी अखबार ने तो ये इदारिया तक लिख दिया कि आखिर कौन सा अमेरिकी या ब्रिटिश बैंक है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग ना की हो, तो बीसीसीआई को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए समझा गया क्योंकि पाकिस्तान में आगा हसन आबदी की बहुत ज्यादा खिदमत थी। एक तो पाकिस्तान में उनका एक बैंक बहुत मुनाफा बख्श था, फिर बीसीसीआई ने पाकिस्तान में सेहत और तालीम के मंसूबों पर भी बड़े पैसे खर्च किए। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट और फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फास्ट बनवाई। सर सैयद यूनिवर्सिटी और गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट बनवाने में अहम किरदार अदा किया। SIUT और NICVD जैसे इदारों के लिए फंड्स दिए। इसलिए हसन आबदी सबके लिए काबिल एहतराम थे। कुदरतुल्लाह शहाब तक ने अपनी किताब शहाबनामा में लिखा है, अक्टूबर 81 में उन्होंने मशहूर रिसाले न्यू स्टेट्समैन का एक पर्चा देखा। टाइटल पर आगा हसन आबदी की तस्वीर थी और नीचे लिखा था हाई स्ट्रीट बैंकर जो हुकूमतें खरीद लेता है। अंदर 4 सफ़ात के मजमून का हर जुमला हसद, दुश्मनी, खौफ और नफरत जाहिर कर रहा था, क्योंकि बीसीसीआई ऐसा बैंक था जो तेजी से दुनिया के हर गोशे में फैल रहा था और ये इंग्लैंड के बैंकों के लिए खतरे का निशान था। वो तो इतने मुतासिर हुए कि बाद में आगा हसन आबदी से मुलाकात भी की। बीसीसीआई की एक अहम शख्सियत के बेटे MB मलिक ने तो किताब लिख डाली, डबल स्टैंडर्ड बीसीसीआई दी अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें उन्होंने कहा कि बीसीसीआई गिरा नहीं बल्कि इसे जबरदस्ती बंद करवाया गया। एक बैकडोर अटैक था और मनी लॉन्ड्रिंग कभी साबित ही नहीं। हबीब मेट्रो बैंक के CEO सिराजुद्दीन अजीज भी बीसीसीआई में काम कर चुके हैं। कहते हैं कि बीसीसीआई में अपने 14 सालों में उन्होंने एक भी ऐसा लेन देन नहीं देखा जो गैर कानूनी। बीसीसीआई की आला इंतजामिया इंतहाई ईमानदार थी, इसलिए मिड लेवल बैंकरों ने अगर कानून की खिलाफ वर्जी की भी तो बीसीसीआई को मुरीद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने बताया कि UAE के हुक्मरान बीसीसीआई की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी लिक्विडिटी फराहम कर चुके थे। सिराजुद्दीन अजीज कहते हैं कि पहली खलीजी जंग के बाद मुस्लिम दुनिया बहरान का शिकार थी, इसलिए मगरबी दुनिया के लिए बैंक बंद करने का नादिर मौका था। ये थी इस बैंक की कहानी जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन फिर वो ऐसा गिरा कि इसका नामो निशान तक मिट गया। बीसीसीआई के जवाल की कोई भी वजह हो, थर्ड वर्ल्ड का वर्ल्ड बैंक माजी का हिस्सा बन चुका है। क्या बीसीसीआई को वाकई मुस्लिम दुनिया का बैंक होने की वजह से टारगेट किया गया? क्या दुनिया भर में कदम जमाने का इरादा रखने वाला यह बैंक किसी आलमी साजिश का शिकार हुआ, या फिर बीसीसीआई एक फ्रॉड बैंक था जिसे बिल आखिर बंद होना ही था? कमेंट्स में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए।